warm welcome to everyone on behalf of Chandigarh Lalit Kala Academy in collaboration with the Department of Fine Arts, University Institute of Design, Chandigarh University. Today's event is part of two important initiatives. Number one, Connect 25, an art exhibition, a landmark exhibition at the Central Lalit Kala Academy, which concludes today. You can visit the underpass, Sector 17 for the same. Number two, art talk and audio, a visual presentation, the special program we're a part of right now with Shri Prem Singh Ji, an eminent artist and former principal, Government College of Art, Chandigarh. We are privileged to have dignitaries, faculty members, students, artists, and art lovers among us. To begin the program, I request Professor Ashima Banker, Director, UID Chandigarh University, and Shri Bhim Malhotra Ji, Chairman, Chandigarh Lalit Kala Academy, to kindly present a planter to our distinguished guest, Shri Prem Singh Ji. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I now invite Shri Bhim Malhotra Ji to kindly address the gathering. Good morning. Good morning, everyone. Respected Shri Prem Singh Ji, eminent artist, city artist, and former principal, Government College of Art. And Ashima Banker Ji, Nitin Mengi Ji, Vandana Ji, D.S. Kapoor Ji, and Malhotra Sahab, Dhami Sahab, and Ravinder Sharma Ji, and many names I can't repeat. So thank you very much. And I welcome the students of Chandigarh University, our and senior artist, young artist. I welcome all of you on this beautiful morning. And जो आज का जो हमारा इवेंट है, जो पार्ट ऑफ टू सीरीज जैसे प्रबलीन ने बताया है, वन इज एग्जीबिशन एट अंडरपास, सेकंड इज दिस प्रेजेंटेशन. आई थिंक दिस जस्ट लाइक ए आर्ट फेयर, जो एटमॉस्फेयर, जो रंग यहाँ जमा है, चाहे वो 17 सेक्टर था, चाहे मैं यहाँ सामने देख रहा हूँ, दिल जस्ट वी आर सेलिब्रेटिंग आर्ट. सो थैंक यू वेरी मच वंदना जी, आशिमा बैंकर जी, एंड नितिन जी, द वे यू हैव क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर with Lalit Kala Academy. और जहाँ तक हमारे प्रेम सिंह सर की बात है, वो तो शहर के दिल में रहते हैं और हम उनके दिल में रहते हैं. तो नो नीड्स ऑफ इंट्रोडक्शन, उनको कौन नहीं जानता. उनका काम है, जो ही इज़ एमिनेंट आर्टिस्ट, राइटर, तो उनमें क्या क्वालिटीज़ नहीं है. सो आज उनकी प्रेजेंटेशन वी विल एंजॉय. सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम. बाकी जो है हमारा जो ललित कला अकेडमी का स्टाफ है, रविंदर जी बैठे हैं, शिल्पी अरोड़ा है, श्रुति आज आए नहीं, तो और सुभाष है, तो कमलपाल है, तो मैं इन सब का तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगा. और साथ में जो हमारे स्पेशल थैंक्स टू नितिन मैंगी और वंदना जी, जिन्होंने विद फुल सिंसियर एंड डेडिकेटेड एफर्ट्स इस प्रोग्राम को सिरे चढ़ाया. मुझे पता है कि पिछले 10 दिनों में मेरे ख्याल से 200 बार इनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई होगी. टू नो द कोई भी सक्सेस के पीछे बड़ा हार्ड वर्क होता है. जब कोई भी सक्सेसफुल प्रोग्राम सामने आता है, तो देयर आर सो मैनी डिटेल्स वी हैव वर्कड ऑन. दैट्स वाई द प्रोग्राम इज कंक्लूडिंग ऑन सक्सेसफुल नोट. सो थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. Now I request Professor Ashima Banker Ji to kindly address a few words. Thank you very much. It's really nice and lovely to see our students here, and I also see, I assume Chandigarh College of Art students are also here? Yes? Right. So, welcome everybody to yet another celebration of art today.
As I had already said, some of you had heard me when I said in the inaugural, art is not something that is just there waiting to be hung on the walls of your living room anymore. And in fact, art has been something that has tied the world together for a very, very long time. Way back, if we look at the times when the world was going through wars, World War I and World War II, art is something that saved. And yet again, art is something that changes the world. That is what gives the lead. That is what gives light to the world, to new way of thinking, whether it was empowering women, whether it was about feminism, whether it was about equity, equitability, and whatever the social messages that have actually transpired the world and changed the world to make it a better place. It has always been art that has been on the forefront. And to all the artists who are here, who've spent their lives, dedicated their lives to art, all kinds of art, giving a message, and letting people get closer to their hearts, getting them closer to their souls, and to the viewers. A big round of applause for all of you for such a great effort that you've done. In India specifically, if I look at, art is also something that holds us close to our roots and traditions. All the folk arts that we have, some influences of those also have actually impacted many of the artists, and we do see inspiration. And some of these young aspiring artists, I do see you all also continue to take inspiration and clues from those folk arts. It's wonderful to see those roots, those traditions being secure and kept intact through your art in some way or the other. You are the next light. You are going to change the world into a much, much better place. And you're also people who are going to work towards peace in this world. Art will bring peace, and it does bring peace always. I repeat myself, art is something that keeps us close to our heart and souls. And I hope all of you are able to keep that promise to yourself and to everybody and anybody you connect with through your art. I hope this is yet another, just a beginning, like Bhim sir said, just a beginning for yet another project of theirs. And I hope a project of all of you to continue to inspire through your art, to make positive transformations and bring about those changes in the world. We all hope that this can become a constant effort by all of us together. Towards the end, I would want to thank, first and foremost, is Prem Singh ji for accepting the award, that we honored him with the Kala Ratna Award on the 22nd when we inaugurated the Art Connect. And thank you for accepting that award. And second is Bhim sir for collaborating with us, and the entire Lalit Kala team for collaborating with us on this event, on the exhibition as well as this talk. This wouldn't have been possible without your support and your guidance. Thank you to all the artists who have taken out time to be here. We hope that you did get a chance to visit the exhibition. If not, it is still on today. So please do take time to visit and give feedback to all the students and the mentor faculty members, so that we can actually follow your guideline to, bring about art that the world can renowned, kind of remember for times to come. And maybe tomorrow one of these students will be standing in my place and maybe giving award to some other younger artists who are here, and something, or somebody might be sitting there at taking Kala Ratna Award. Maybe the 50th Kala Ratna Award 50 years from now will be taken by one of these artists, and why not? So I hope that all of you can guide and inspire them and give your constructive feedback so that we can improve. Thank you very much, everybody, for all the efforts. Thank you. Thank you, ma'am. I now request Shri Ravinder Sharma sir, Vice Chairman of Chandigarh Lalit Kala Academy, to share a few words. सर, एक छोटी सी कविता आपकी नज़र बहुत छोटी है, मगर बड़े दिल में अरमानों से लिखी है आपके लिए।
आदमी पहले गुल, फिर गुलशन, फिर बहार हो जाता है। आज हमारे बीच में बहार बैठी है। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, एक शायर की पंक्तियाँ याद आती हैं कि तिनकों से खेलते रहे आशियाँ में हम, गया भी और आया भी ज़माना बहार का। अगर बहार आपके पास है तो आपको अपने कान, मन, दिल सब खुले रखना है, तो आप आने वाले समय में अपने भीतर एक बहुत बड़ा चेंज महसूस करोगे। आज आपको वो फैसिलिटी मिल रही है। इसलिए मैं कुछ बातें सर के कहना चाहिए उस नूर के बारे में करूँगा जिसे आज हमने महसूस करना है। सर के नाम के साथ प्रेम और सिंह लगा हुआ है। खलील जिब्रान एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं। मैं जब भी कॉलेज में सर का स्टूडेंट भी रहा हूँ, फिर सर का कोलीग भी रहा हूँ, और जीवन के अंतिम सांस तक इनका फ़ैन भी रहूँगा। खलील जिब्रान की एक कोट है, मैं अक्सर उसको अपने शब्दों में कोट करता हूँ, आप सबके लिए है, जो प्रोफेसर प्रेम सिंह जी के शब्दों और विजुअल्स में आप महसूस करेंगे। जिब्रान एक लेबनानी और अमेरिकन राइटर थे और बहुत बड़े पेंटर भी थे। वो कहते हैं कि जीवन बिना अर्ज के खाली है, और अर्ज बिना नॉलेज के खाली है, नॉलेज बिना काम के खाली है, और काम बिना प्यार के खाली है। सर को मैंने इन चारों चीज़ों का नूर देखा है। इनमें वो अर्ज भी है, नॉलेज भी है, काम भी है, लेकिन इनको काम करते देख के जो प्यार उमड़ता है, वो कहते हैं वर्क इज़ लव मेड विजिबल। ये प्यार का साक्षात स्वरूप भी यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए आज आपके लिए बहुत कुछ पाने का अवसर है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमने सर को सुनना है। मैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के फैकल्टी, मैनेजमेंट और स्टूडेंट को बधाई देता हूँ कि आज आपने अपने लिए समय निकाला है। आपका एग्जीबिशन और उस दिन जो प्रोग्राम था सचमुच एक प्रेरणादायक। कभी भी कहीं भी छोटे स्तर पे बच्चों को कुछ करने के जज्बात कहीं भी पैदा होते हैं, भविष्य मुस्कराता है। तो आप लोगों की शुरुआत में चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी भी अपना हिस्सा डाल सकी, हम सबके लिए बड़े अभिमान की बात है। विशेषकर प्रोफेसर भीम मल्होत्रा, वो अक्सर कहते हैं कि रविंद्र जी, हम चाहते हैं कि एकेडमी उन सभी लोगों की मदद करे जो अपने आप को कुछ देश के काम के लिए कला का प्रयोग करना चाहते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ सर का, जिन्होंने टाइम निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए में वक्त दिया। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir. Before we move to the highlight of today's event, let me share a short introduction of our esteemed guest. Shri Prem Singh Ji was born in 1943 in Patiala, Punjab. He is the former principal of Government College of Art, Chandigarh, and has also served as a member of the General Council, Lalit Kala Academy, New Delhi, and Advisory Committee, National Gallery of Modern Art, New Delhi. Over his career, he has held more than 30 solo exhibitions since 1966 and participated in numerous national and international art events and campus across the world. His outstanding contributions have been recognized with several awards, including Trinelli India Award 1994, Lalit Kala Academy, New Delhi, Sachi Gallery Studio Award 2007, London, Punjab Kala Ratan 2014, Amrita Shergill Samman 2015, Shri Guru Nanak Dev Ji Achievers Award 2019, Punjab Gaurav Samman 2025, Kala Ratan Award 2025, Chandigarh University. His works are in permanent collections of National Gallery of Modern Art, Rashtrapati Bhavan, Government Museum in Art Gallery, Chandigarh, and many others in India and abroad. He has also played important roles as Commissioner of the 11th Trinelli India 2003
and curator of Art India exhibition in Colombo 2006. Along with creating art, he regularly writes for newspaper and journals, contributing to art discourse. It is indeed an honor to have such a distinguished artist and art thinker with us today. With this introduction, I now invite Shri Prem Singh Ji to deliver his audio-visual presentation and share his artistic journey with us. I'm thankful to Chandigarh Lalit Kala Academy and Chandigarh University for giving me an opportunity to share my experiences with you. Well, art for me is one of the vital means of seeking relationship with the people. So if I am here today, it only because of my journey into art. And now, let us go back from where this journey started. तो मैं पटियाला का रहने वाला हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ था। शायद आपको पता होगा, पटियाला जो 1947 के बाद एक स्टेट बनी थी, पैप्सू, उस वक्त उसकी राजधानी थी। पर ये कुछ देर के बाद ये स्टेट ख़त्म हो गई और पैप्सू जो है पंजाब में मिल गया। तो हमारा जो घर था पटियाला में, तो वो आर्य समाज और बी टैंक के दरमियान में पड़ता था। और वही मेरा जो बचपन है मैंने गुजारा, और मेरे बचपन के कुछ दोस्त थे, और जो खेलना था जो है, तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारा रोज़ का एक बहुत मतलब अहम टाइम होता था। तो ये जो है ये मतलब 26 सेक्टर में एक मैंगो ग्रूव होता था। तो हम क्या था कि जब भी मतलब संडे या सैटरडे होता था तो हमने अपना पानी की बोतल उठानी और पेस्टिंग बोर्ड जो है हमने बनवा लिया था, उस पर सीट माउंट करके अपना कलर बॉक्स लेके स्पॉट ढूंढने चले जाते थे। तो ये एक 26 सेक्टर में मैंगो ग्रूव था। तो मैंने वहाँ बैठ के, ये भी मैं है 1965 के करीब मैंने पेंट किया हुआ है जो है, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट। तो उस वक़्त जो है कॉलेज ऑफ आर्ट में जो है बलदेव राज रतन बहुत ही मतलब एक तरह के मास्टर वाटर कलरिस्ट थे। तो हम मतलब जो है बहुत डरते डरते उनके पास लेके जाते थे दिखाने के लिए, क्योंकि वो बहुत एकदम मतलब आपको ईमानदारी से अपनी ओपिनियन देते थे। तो मैं उनके पास ये लेके गया लैंडस्केप, मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा जी मेरे कि तुमने ये कहाँ से किया? तो मैंने बताया कि जी मैं 26 सेक्टर गया था, तो वहाँ से मैंने पेंट किया है। कि तो ये अगर आपने स्पॉट पे पेंट किया है तो ये बहुत अच्छा है। मैं कहा सर इसमें क्या अच्छा लगा आपको जो है? तो उन्होंने मुझे बताया कि तूने ग्राउंड में कोई कलर नहीं लगाया, वाइट छोड़ा हुआ है, बट फिर भी ये इतनी डेप्थ दिखा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा वाटर कलर मैं कहूँगा जो हमारा। तो ये उन्होंने मुझे बताया था। तो आपने देखा होगा कि मैंने जो है वाइट छोड़ा हुआ है कागज़ जो है मैंने किया नहीं, बट स्टिल यू फील द डेप्थ इन दैट। तो ये मतलब उस वक्त जर्नी में हमारे टीचर के साथ जो संवाद होता था, वो क्या कहते थे हमारे काम के बारे में, तो फिर हम उसको आगे उनसे सीख के आगे कैसे चलते थे जो है। नेक्स्ट, तो ये भी मतलब चंडीगढ़ लेक का ही वो है लैंडस्केप है, क्योंकि वहाँ ये बड़ा फेवरेट स्पॉट होता था हमारा। क्योंकि जहाँ तो यहाँ पे मतलब 3 चीज़ें होती थी उस वक़्त पेंट करने के लिए, जिससे हम बहुत ज़्यादा मतलब जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। एक तो ये चंडीगढ़ लेक थी, दूसरा ये था कि चंडीगढ़ उस वक़्त बन रहा था, तो बहुत सारे जो है ब्रिक किलन्स होते थे यहाँ पे, तो उनको पेंट करना जो है। तो तीसरा जो था कि जो मज़दूर इस शहर को बना रहे थे, तो उनके जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगता था उनको पेंट करना जो।
नेक्स्ट। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट से निकल पड़े हम, तो अब क्या है कि अब हम मतलब अपना रास्ता जो है ढूंढ रहे थे। तो वो तो जो एकेडमिक सिस्टम में जितना भी हम सीख सकते थे, तो हमने वो मतलब पूरी कोशिश से, पूरी ईमानदारी से हमने सीखा जो है। तो ये जो था कि आप देखोगे कि मैं 18 सेक्टर में रहता था उस वक़्त, तो 18 सेक्टर फर्स्ट फ्लोर पे रहता था। तो नीचे जो है वो दो मतलब एक तरह की एक कनाल की कोठी थी, तो कुछ पोर्शन वहाँ कच्चा था वहाँ पे। तो वहाँ जो कोठियों में काम करते थे उनके बच्चे रहते थे, तो वो जो है ये खेल खेलते थे। कहीं चारपाई पड़ी हुई है, कहीं जो हॉप स्क्वॉच है जो हम पीछो कहते हैं वो है, तो और ये जो राउंड है इसमें जो मार्बल्स रख के हम खेलते थे जो, तो ये सारा जो है मतलब मुझे मैंने ऊपर से देख के तो ये मैंने पेंटिंग बनाई थी जो है। तो आर्टिस्ट जो है कहाँ कहाँ देखता है और उसको फिर कैसे अपनी कल्पना से उसको एक्सप्रेस करता है। तो नेक्स्ट था ये मतलब उसमें क्या था कि जो पहले हम मतलब 18 सेक्टर में फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, फिर मतलब क्या है कि एक आगे वाला मकान खाली हो गया तो हमने वो किराए पे ले लिया था जो। तो वहाँ एक विकेट गेट था जो ऐसे ही जैसे ये है ना। तो ये विकेट गेट जो था, तो जो मेरी वाइफ है जो ये सुबह उठती थी, जो डेली कोर्स इन्हें करना होता था करती थी, तो मेरा जो बेडरूम था उसमें विंडो थी, मैं वहाँ से सारा देखता रहता। तो ये पेंटिंगें जो है वहाँ से जनरेट हुई कि ये एक विकेट गेट है, इसके अंदर की लाइफ और इसके बाहर की लाइफ जो है, तो इसमें भी मतलब जो है एक बहुत बड़ा मतलब सोसाइटी का जो है मतलब जीने का, औरत के जीने का जो है मतलब एक दुनिया है उसकी अपनी जो। तो मेरा ध्यान उस पर गया, तो मैंने ये 78 में जो सीरीज़ है ये मैंने शुरू की थी जो है। तो इसमें दूसरा ये था कि ये आप देखोगे, आप पूछोगे कि इसमें चेहरे क्यों नहीं बनाए, ये नहीं बनाए। तो मेरा ये था कि मैंने कहा जो अभी तक जो आर्टिस्ट हैं तो उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है फेशियल फीचर्स के ऊपर जो है। तो मेरे मन में आया कि भाई जो है कि अगर ये फेशियल फीचर्स ना हो तब भी क्या जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो थॉट्स हैं एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो उस कन्विक्शन से मैंने इस रास्ते पे चलना शुरू किया। तो क्योंकि उसमें जो है मुझे हम बच्चों का टूर लेके जाते थे कॉलेज ऑफ आर्ट में, तो वहाँ जो है जब हम देखते थे तो कई जगह ऐसे छोटा सा टुकड़ा पड़ा है लेकिन वो पूरे उस समय की दास्तां बताता है जो है। तो मुझे लगा कि हाँ इसमें पॉसिबिलिटी है। उसने भी मुझे रीइंफोर्स किया कि आप इस रास्ते पे चलो जो है। ये जो पेंटिंग है ये चंडीगढ़ म्यूज़ियम में ही है यहाँ पे जो है। तो आगे नेक्स्ट। हाँ ये एक काम है, ये मेरे पढ़ते वक्त के काम है। यहाँ मैं जब स्टूडेंट था यहाँ पे, तो उस वक्त ये था कि हमारे एक टीचर थे सुनीरमल चैटर्जी, तो वो उस वक्त उनको एक मतलब स्कॉलरशिप मिला था। तो मतलब वो वहाँ पोलैंड से मी.एस. पेत्रोव करके बहुत ही फेमस वहाँ के ग्राफिक आर्टिस्ट थे, तो वो उनसे अंडर काम करके आए थे। तो उनसे जब वो आए तो उन्होंने मतलब जो है ये वुड कट वगैरह जो है हमें करवाना शुरू किया। तो हमारे ये होता था कि कई बार तो ये लकड़ी ख़रीदने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। तो ये जो मैंने जो वुड कट किया उस वक्त, तो ये जो है मतलब मैंने अपना ड्राइंग बोर्ड ही यूज़ कर लिया था जो है। तो इसमें जो है जो मैंने बनाया, जो मैंने डबल फेसड मैन बनाया था कि एक आदमी के दो चेहरे कैसे होते हैं जो है। तो ये डबल फेसड जो है ये आज एक एग्जीबिशन चल रही है इंडिया में मतलब, तो उसमें जो है ये वुड कट प्रिंट्स के जो है ये प्रिंट उसमें इंक्लूडेड है जो ईनापुरी ने क्यूरेट की हुई है। और ये आजकल जो है ये मतलब इंडिया में ट्रैवल कर रही है एग्जीबिशन जो है। अच्छा, ये साथ वाली जो पेंटिंग है तो यही पेंटिंग है जो डॉक्टर गोस्वामी ने अपने रिव्यू के साथ ट्रिब्यून में 1966 में प्रिंट की थी जो। तो यही पेंटिंग है जो मतलब डॉक्टर M.S. रंधावा ने सिलेक्ट करके म्यूज़ियम की कलेक्शन के लिए उन्होंने रखा था जो है। तो ये इसमें मैंने स्प्रिंग बनाई थी जो है। तो इसमें आप देख सकते होगे थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट
टेंडेंसी जो है मेरे में शुरू में ही थी। तो लेकिन मैंने ये जैसे 2 फिगर्स बनी हुई हैं अगर आप देखो तो, और बाकी सारा मैंने जो स्प्रिंग टाइम का जो है तो वो एक मतलब क्या कहते हैं माहौल क्रिएट करने की कोशिश किया जाए। तो ये पेंटिंग भी चंडीगढ़ म्यूज़ियम में है जो है। नेक्स्ट। हाँ, ये मैं जब मैंने दिल्ली में ज्वाइन कर लिया था कॉलेज ऑफ मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आई&बी, तो वहाँ पे मुझे बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ा जो है। तो मैं ये आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है कुडप्पा करके, तो वहाँ मैं था और गर्मी थी बहुत वहाँ पे। तो उस वक़्त ये जो वाटरमेलन है वो मतलब इतने टन्स में आता था मार्केट में जो है। तो मैं जो उस वक़्त मेरी ड्यूटी लगा दी थी, अगर शायद किसी को याद हो कि 1967 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 ट्रेन्स बनाई थी, डिफेंस एग्जीबिशन ट्रेन। उसमें जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस थी इंडिया की वो सारे मुल्क को वो दिखाना चाहते थे। तो उसमें मेरी ड्यूटी भी इन्होंने लगा दी थी। तो हमारा काम यही होता था वीआईपी को पकड़ना है, प्रेस को कांटेक्ट करना है, इनागुरेशन करवा देनी है और पब्लिक के देखने के लिए जो लोकल अरेंजमेंट्स हैं वो करवाने होते थे। तो ऐसा काम भी मैंने किया वहाँ पे। लेकिन जब हमें ये सारा काम करवा लेते थे उस वक़्त जो है फिर तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था, तो हम इधर उधर घूमते थे। तो मैंने देखा कि लोग वहाँ मतलब इतना बड़ा बड़ा वाटरमेलन लेते थे, ऐसे हाथ मारते थे, 2 हिस्से करे, खा के एकदम फेंक देते। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक तो इसका रंग अच्छा लगा ग्रीन, और उसमें से जो रेड निकलता था तो वो और भी अच्छा लगा। तो मेरा मन किया कि मैं इसको पेंट किया जाएगा। तो मैं मार्केट गया, पता किया कहाँ से कोई आर्ट मटेरियल मिल जाए। तो मैंने एक इंक की बॉटल ख़रीदी, एक ग्रीन कलर ख़रीदा, एक रेड कलर ख़रीदा, एक कागज़ ख़रीदा। तो मैं उस वक़्त हम ट्रेन में ही रहते थे, तो ये मैंने उस वक़्त ट्रेन में 68 में वहीं पे पेंट किया था जो है। तो ये मतलब मैं इसको मतलब एक तरह का मेरी बहुत फेवरेट, मैं इसको अपना काम मानता हूँ। तो ये काम मेरे पास है, मैंने किसी को दिया भी नहीं है जो है। तो नेक्स्ट। तो मतलब कैसे जो है मतलब व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जो है, तो कैसे मतलब आपके जो नए एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपकी जर्नी में ऐड होते रहते हैं। तो ये जो है मतलब तो ये भी जो है जैसे मतलब मैंने बहुत देर जो है वेल्ड वुमेन को पेंट किया है जो है। तो ये वेल्ड वुमेन जो है वो वर्टिकल भी थी, अब ये डायगनल जो है वैन मतलब ये मूवमेंट में जो है। तो इसमें भी जो है मतलब उस वक़्त कोई मेरे रहते शायद फ्लडिंग हुई थी बहुत ज़्यादा, तो ये उस वक़्त की पेंटिंग है। पर इसमें मैंने जब NGMA को भेजा परचेज़ के लिए तो उन्होंने एक्वायर कर ली थी उसके लिए। ये पेंटिंग जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में वो है जो है। तो नेक्स्ट। तो ये जो है जब हम ये शाम को छुट्टी होती थी, सर्दियों में जल्दी अंधेरा पड़ जाता था। जिस ये ऑडिटोरियम में आप बैठे हो हमारे कॉलेज से ऐसे ही दिखता है पीछे। तो कई बार तो ये है मतलब आपको सनसेट भी बना है। तो ऐसे जो है जब हम निकलते थे, जो मैंने उसको उस जगह को लेके जो है तो मैंने ये मतलब जो है वेल्ड वुमेन को पेंट किया हुआ है जो है। तो ये भी पेंटिंग मेरे पास ही है, मैंने किसी को नहीं दी हुई है। नेक्स्ट। तो ये वही जो डायगोनल वुमेन की जो सीरीज़ है, तो ये भी पेंटिंग मैंने अपने पास ही रखी हुई है। तो इसलिए रखी हुई है कि मैंने एक बॉम्बे में शो किया, तो मैंने मतलब अपना शो उतारा था, तो बेंद्रे साहब ने लगाया था। तो जब मैं उतार रहा था तो बेंद्रे साहब ने मेरे काम के बारे में देखा, तो मुझे वो कहने लगे कि ये पेंटिंग तुम्हारी बहुत अच्छी है, इसको मत बेचना कहीं जो है ना, तो ये अपने पास रखना जो है। तो ये मुझे भी वैसे अच्छी लगती है पेंटिंग जो है। तो मैं मतलब इसको अपनी कलेक्शन में, मेरी कलेक्शन में है ये पेंटिंग, मेरे पास है जो है। तो ये अब देखें सारी वेल्ड वुमेन की है। आना नेक्स्ट। तो ये हम जो सुबह चंडीगढ़ लेक पे सैर करने जाते थे, तो एक बार जो है थोड़ा जल्दी निकल गए, तो वहाँ हमें एहसास हुआ कि वैन मॉर्निंग अवेकन्स जो है, जब सुबह जागती है तो क्या उस वक़्त मतलब माहौल होता है जो है। तो मैंने ये मतलब जो है जो मैं वेल्ड वुमेन तो मैं पेंट कर ही रहा था, तो उनको प्लेस करके तो मैंने वो सारा, इसका टाइटल भी यही है, ये मॉर्निंग अवेकन। लेकिन ये एक साउथ कोरिया से आए थे, तो एशियन बैंक के वो थे
बड़े ऑफिसर थे, तो वो ले गए थे मेरे से पेंटिंग, ये जो है ये उनकी कलेक्शन में है जो है। तो इसका जो टाइटल मैंने दिया था, व्हेन मॉर्निंग अवेकन्स है। तो नेक्स्ट, ये जो मतलब आपने देखा होगा कि हमारा जो 80s का पीरियड था, ये बहुत ही मतलब ट्रबल्ड पीरियड था पंजाब के लिए जो है। तो ये जो पेंटिंग है मैंने मतलब उस वक़्त बनाई है जब 1984 हो चुका था, और उसके बाद जो है थोड़ी लाइफ जो है थोड़ी नॉर्मलाइजेशन हो रही थी उसकी लाइफ की जो है। तो ये मेरे ब्रदर का लड़का है, वो बॉम्बे से आया हुआ था, तो मैं 7 सेक्टर में रहता था, ये मेरे 7 सेक्टर मकान का लॉन ही है। तो ये हैज के अंदर ही उस वक्त खेलता था जो है। तो ये जो है उसको ये पतंग उड़ाने का शौक़ था, तो मैंने उसको काइट्स वगैरह ला दिए। तो जब वो खेलता था तो मैं मतलब उसको पेंट करता था। तो ये पेंटिंग उसी पीरियड की है, लेट 80s की जो है। हाँ जी, नेक्स्ट, ये उसकी दूसरी पेंटिंग है। सामने हमारे स्कूल होता था। तो नेक्स्ट, तो मैंने बहुत देर जब वेल्ड वुमेन पेंट किया, तो फिर मैंने मतलब जो है मतलब क्योंकि मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप जितना मर्जी पेंट कर लो, जब भी आप जो है कोरे कैनवस के आगे बैठते हो, तो वो कोरा कैनवस आपको पूछता है जो है कि प्रेम सिंह पेंटिंग तो इतने सालों से हो रही है, तुम्हारे में ऐसा क्या है कि तुम मेरे कोरेपन से खेल रहे हो जो। तो उसका जवाब जो है आपको अपने एक्सप्रेशन से देना होता है ना। तो ये मैं फिर वो जो वेल्ड वुमेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो वेल डिसअपियर हो गया एक तरह का, तो उसके बीच में है फिर मैं आई वेंट टू नेचर जो है। तो मैं फिर मतलब प्रकृति में चला गया। प्रकृति में इसलिए चला गया क्योंकि मैं जो चंडीगढ़ में जो है ये हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इससे बढ़िया जगह कोई और आर्टिस्ट के लिए हो नहीं सकती। क्योंकि क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपको मालूम होगा ये जो शहर है, मतलब दिस सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ सन, स्पेस एंड साइलेंस जो है। तो आर्टिस्ट को और क्या चाहिए होता है? सन चाहिए होता है ना, स्पेस चाहिए होता है, और साइलेंस चाहिए होती है। तो मैं उस शहर में बड़ा हुआ हूँ। तो इनफैक्ट जो है चंडीगढ़ शहर और मैं, हम दोनों इकट्ठे ग्रो किए हैं जो है। तो ये मैं सोचता हूँ कि लोग कई बार सोचते हैं कि प्रेम सिंह दिल्ली चला गया, चंडीगढ़ छोड़ गया। ये चंडीगढ़ नहीं छोड़ के गया। अभी भीम ने कहा भी था कि जो है चंडीगढ़ के दिल में प्रेम सिंह रहते हैं, हम प्रेम सिंह के दिल में रहते हैं और मैं उनके दिलों में रहता हूँ जो है। तो उन्होंने एक मेरे नाम के बारे में भी जिक्र किया था, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे डॉक्टर DC भट्टाचार्य। तो वो हम ऐसे ही मतलब कहने लगे कि जी तो मेरे नाम के बारे में बता रहे थे किसी को, क्योंकि हमने बहुत देर काम किया। वो चेयरमैन थे, मैं सेक्रेटरी था चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी का। तो कहते इसका नाम प्रेम सिंह है। कहते प्रेम सिंह इज़ ऑल राइट, जब इसके साथ सिंह लग जाता है दैट मीन यू कांट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। तो ये मेरे नाम की उन्होंने व्याख्या की थी जो है। तो ये फिर यहाँ से मेरी जर्नी जो है नेचर से शुरू हो जाती है। तो और दूसरा जो है जो मैं जो बता रहा था कोरे कैनवस वाली बात जो है, क्योंकि जो वाइटनेस जो कैनवस की होती है ये बड़ी स्कैरी होती है जो। तो फिर मैंने जो है मतलब उसको स्कैरीनेस को वार्ड ऑफ करने के लिए तो मैंने क्या है कि मैं उसको कोई भी कलर लेके मैं भर देता था उसको जो है। तो जब भरने के बाद जब मैं भरे हुए कैनवस को देखता था तो उसकी ब्रश स्ट्रोक्स में मुझे एक रिदम नज़र आता था। इवन इन द फिलिंग अप ऑफ द कैनवस देयर इज़ सम काइंड ऑफ रिदम हिडन इन दैट। तो वो रिदम कहाँ है, फिर मैं उसी को रिदम को ढूंढता हुआ मतलब अलग अलग मौसमों से गुजरता रहता हूँ। तो ये नेक्स्ट ये आप देख सकते हो जो है नहीं। तो ये जो मैं पेंटिंग दिखा रहा हूँ जो कुछ जो मैंने बताई हैं वो पेंटिंग मेरे पास हैं, बाकी सारी कलेक्टर्स के पास हैं ये पेंटिंग। ये एक पेंटिंग शायद इटली में है, वो वाली शायद कनाडा में है किसी के पास जो है। तो नेक्स्ट, तो ये सारा मतलब जो है मेरा मेरे एनकाउंटर्स हैं, क्योंकि मुझे मतलब एक तो ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने
अभी तक बहुत ट्रैवल किया मैंने, और जहाँ मैं जाता हूँ तो मतलब जब भी मैं नेचर से मतलब एक डायलॉग इस्टेब्लिश करता हूँ तो मुझे बहुत कुछ जो है, क्योंकि मैं जब पेंट करता हूँ तो मैं प्लांट की तरह ही मतलब महसूस करता हूँ कि दैट आई शुड बी फर्मली रूटेड इन माई सॉइल एंड देन जो है पेंट एंड द काइंड ऑफ ब्रीदिंग, द ऑर्गेनिक ब्रीदिंग दैट यू सी इन ए प्लांट जो है, तो आई ट्राई टू इन्फ्यूज़ दैट फीलिंग इन टू माई पेंटिंग जो है। नेक्स्ट, ये मतलब जो है जैसे मैं कश्मीर गया था तो उस वक़्त चिनार का दरख्त वहाँ पे बहुत खिला हुआ था जो है, तो मतलब आपको कई बार ये होता है कि कुछ नहीं आपने करना, सिर्फ आंखें खुली रखनी है और आपको देखना आना चाहिए जो है। तो अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो आपके पास कभी किसी चीज़ की भी कमी नहीं हो सकती पेंट करने के लिए, है ना। कल्पना तो ऑफ कोर्स आपको चाहिए, इमेजिनेशन तो इज़ अ मस्ट जो है, बट इमेजिनेशन को आपने मतलब उसको कंस्ट्रेंट नहीं करना जो है, उसको फ्री रखना है, बिकॉज आई बिलीव कि इमेजिनेशन वर्क्स द बेस्ट व्हेन इट इज़ मोस्ट फ्री जो है। तो ये वहाँ पे श्रीनगर में की हुई पेंटिंग है। नेक्स्ट, तो ये जो है दो पेंटिंगें हैं लेकिन दोनों की जर्नी अलग है। ये जो मैं आई वॉज इन कनाडा, तो द ईयर वाज 2012। तो मैंने मतलब जब मैं आया था वापस कनाडा घूम के, तो मुझे किसी ने पूछा भी था तो मैंने उसको यही बताया था कि मैंने कहा देखो मैं वहाँ पे मैं समर फॉल सीजन सारा मैंने एक्सपीरियंस करके आया हूँ, तो अगले 5 साल में अगर मैं अपनी आंखें भी बंद कर लूँ तो मैं पेंट कर सकता हूँ। तो इतना मतलब इंस्पायरिंग और स्टिमुलेटिंग होती है नेचर जो है। तो ये जो है जब मतलब शुरू हुए थे पीले पत्ते आने वहाँ पे, जो लेफ़्ट साइड पे पेंटिंग है ये इट्स ऑन पेपर, एक्रेलिक्स में की हुई है। तो ये अब ये मतलब ट्रीज़ पे पीले पत्ते आने शुरू हुए थे जो है। तो जो दूसरी पेंटिंग है तो मुझे एक मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट ने एक असाइनमेंट दी थी, तो उन्होंने मुझे कमिश्नर अपॉइंट किया था, तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप जो है एक श्रीलंका के लिए एग्ज़िबिशन मतलब आप क्यूरेट करो जो है। तो मैंने एक आर्ट इंडिया एग्ज़िबिशन क्यूरेट की थी, तो हमें वहाँ पे उन्होंने कोलंबो में ठहराया था, वो ओवरलुकिंग सी जो है। तो वहाँ हम रहे, मेरे साथ मेरे मिसेज भी थे, तो हम वहाँ कोई 8-10 दिन रहे, फिर उसके बाद सारा श्रीलंका घूमे। तो ये जो है पेंटिंगें जो है जब हम वापस आए तो ये समुंदर हमें जो है बार बार याद आ रहा था, तो फिर हमने इसको पेंट किया जो है। तो नेक्स्ट, ये भी वहीं की है, श्रीलंका की जो है, लेकिन ये ऑयल में है, बाकी दो जो है एक्रेलिक्स में की हुई है मैंने जो। नेक्स्ट, ये जो मतलब मैं जो फॉल सीज़न की बात कर रहा था, ये कनाडा में किए हुए काम है सारे जो है, ये फॉल सीज़न के काम हैं जो। इसके बारे में जो है उसने मतलब एल्बर्ट कैमू करके बहुत फेमस राइटर हुए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था इस स्प्रिंग के बारे में कि ना ऑटम के बारे में, कि ऑटम इज़ ए सेकंड स्प्रिंग व्हेन ईच लीफ इज़ ए फ्लावर जो है। एंड एक्चुअली जो है इफ़ यू एक्सपीरियंस इट जो है एंड यू फील दैट ईच लीफ इज़ ए फ्लावर जो है, तो ये जो है मतलब वहीं के एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे को कनाडा में हुए थे, जो मैंने पेंट किए जो है। कुछ तो मैंने वहाँ पेंट किए, कुछ आके हिंदुस्तान में पेंट किए जो। नेक्स्ट, ये भी उसी भी है, तो मैं मतलब आई वाज ऑन माय वॉक, तो वहाँ 2 ट्रीज़ थे, उसमें से जो सन की लाइट आ रही थी, तो वो जो मैं वापस आपने स्टूडियो में आया, तो जो मैंने उस वक़्त एक्सपीरियंस किया था तो मैंने उसको ये पेंट किया है जो। नेक्स्ट, तो ये सारी मतलब फॉल सीरीज़ के काम हैं जो मैंने कनाडा में किए थे जो। नेक्स्ट, ये जब पत्ते गिरे होते हैं नीचे जो है। नेक्स्ट, हाँ ये मेरे काम है जब मैं ये नेचर में चला गया था और उसको अलग अलग मतलब जो जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंसेस होते थे तो उससे मैं मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करता रहता था। नेक्स्ट,
हाँ, ये पेंटिंग है, मतलब दे आर मोर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर जो है, बट दे आर रूटेड इन नेचर जो है। नेक्स्ट, ये भी मतलब फॉल सीरीज़ का एक्सपीरियंस है मुझे। नेक्स्ट, ये भी वही एक्सपीरियंसेस हैं। और नेक्स्ट, तो ये है, ये मैं जो पेंटिंग अभी मैंने ये एग्जिबिट की थी रेड कलर वाली, हर वो एक मुझे पूछने लगा, तो मतलब आर्टिस्ट जो है सर ये इतना रेड जो है ब्राइट कैसे आ गया आपकी पेंटिंग में। मैंने कहा इसको लाने के लिए मुझे 60 साल लगे हैं। तो मेरा जवाब था। हाँ, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट, ये पेंटिंग फ़रूख अब्दुल्ला के पास है जो है, ये काइट्स पे मैंने कोई सीरीज़ की थी एक बार जो है, ये कैसे जो है द कल्चर ऑफ काइट्स डिसइंटीग्रेटिंग जो है, ये आप देख रहे होंगे जो है। नेक्स्ट, हाँ, ये पेंटिंग मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे कॉलेज के ही पेड़ हैं यहाँ पे जो लगे हुए, सिमल के कुछ दरख्त थे, तो वो उसमें ऐसे कि और ह्यूमन फिगर्स नज़र आती थी जो। तो बेल्ट वो मैं उस वक्त पेंट कर रहा था, तो ये मैंने मतलब ये ट्री जो है मेरे कॉलेज के, जब मैं बाहर निकलता था तो सबसे पहले मुझे यही नज़र आता था। ये मैंने उस वक्त पेंट किया हुआ है। और इस पेंटिंग के बारे में ये है के हैबर साहब को ये पेंटिंग बहुत पसंद थी, तो उन्होंने भी मुझे यही एडवाइस की थी कि भाई आप किसी को देना मत, इसको अपने पास रखना। ये पेंटिंग मेरे पास ही है जो है। नेक्स्ट, तो ये जो मतलब जब पंजाब में बहुत हलचल थी या बड़ा डिस्टर्ब था जो, तो ये एक तरह के ये डिस्टर्ब पैटर्न्स हैं जो है मतलब। तो इसको मैंने मतलब एक ग्रिड बना के पेंट किया था। तो वो ग्रिड बनाने का मतलब ये था कि मेरे कुछ जहन में शायद फुलकारी थी, तो उसके जो पैटर्न्स हैं, कैसे पंजाब के जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी तो कैसे डिस्टर्ब पैटर्न्स वो लग रहे थे। नेक्स्ट, हाँ, ये जो है मतलब 1984 में तो मतलब बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, है ना, जो कम्युनल राइट्स हुए थे। तो उस वक्त ही नवंबर में, नवंबर के 3rd या 4th वीक में जो है मेरा शो था श्रीधरानी में। तो मुझे मेरे दोस्तों ने, दिल्ली वालों ने भी, यहाँ वालों ने भी कहा कि भाई दिस इज़ नॉट द टाइम टू एग्जिबिट, यू बेटर स्टे बैक इन चंडीगढ़ जो है, अब मत एग्जिबिट करो जो है। पता नहीं क्या था हमारे जहन में, लेकिन मैं तो जाऊंगा मैं, और मैं गया वहाँ, मैंने एग्जिबिट किया जो है। तो एग्जिबिट किया वहाँ पे मैंने। तो जब मैंने इनविटेशन भेजे लोगों को, तो उस वक्त मेरे एक दोस्त थे, देवास मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के पेंटर थे एक अफजल करके। तो वो बहुत अच्छा मतलब रज़ा के कंटेम्प्रेरी थे, हुसैन के कंटेम्प्रेरी थे, जो अफजल था उनका नाम। तो उन्होंने मतलब उनको जब मेरा जो इनविटेशन मिला तो उन्होंने मुझे मतलब चिट्ठी लिखी, मुझे पत्र लिखा उन्होंने। तो उसमें जो उन्होंने कुछ ऐसे लिखा था जो मैं लाइनें आपके साथ शेयर करनी चाहता हूँ। प्रिय प्रेम सिंह जी, आपको मतलब आपकी प्रदर्शनी का निमंत्रण मिला, दिल बहुत खुश हुआ कि आप जिंदा हैं। ये था उनका जो है कि दिल बहुत खुश हुआ कि आप ज़िंदा हैं, क्योंकि 1984 के बाद तो ऐसे लग रहा था जैसे कि कम्युनिटी इज़ कम्प्लीटली वाइप्ड आउट जो है। तो वो मेरे पास जो है मतलब उसका लेटर पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने मतलब एक ट्रिब्यून में पीस भी लिखा था कि दिल बहुत खुश हुआ कि आप ज़िंदा हैं, तो जिसमें मैंने सारी पंजाब की ट्रेजेडी की दास्तां उसमें दी थी मैंने जो। तो और उसको देखने के बाद, क्योंकि मैं वहाँ 10 दिन रहा, मैंने एक्सपीरियंस किया वहाँ पे जो जगह वहाँ पे जहाँ मतलब हुई थी, ट्रेजेडी हुई थी। तो उसके बाद जब मैं वापस आया जो है, तो ये थोड़ा सा मतलब इसमें सीक्वेंस की है, थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये मतलब बाद इससे मैं अब इंक ड्राइंग्स आएंगी तो मैं उसमें आपका जिक्र कर दूँगा। तो उस वक्त मेरे को ये लगा कि मैंने जो सारी ट्रेजेडी है वो मतलब 2 सीरीज़ में मैंने एक्सप्रेस की थी अपनी जो है।
तो वो मतलब उनको 2 सीरीज़ का नाम भी अलग अलग था। ये जो ड्राइंग की सीरीज़ थी मेरी, उनका था इमेजेस फ्रॉम द स्कार्ड सिटी जो है। तो दूसरी जो थी, जो जिसकी मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं, क्राई द बिलवड पंजाब, ये 2 सीरीज़ मैंने की थी जो है। तो उसमें जो है वो मतलब सारा कुछ देखने के बाद जो है मुझे ये लगा कि भाई अगर ये सिविलाइज्ड वर्ल्ड का काम है तो क्यों ना प्रेम सिंह वहाँ जाया जाए जहाँ तू ही था पहले और कोई नहीं था जगह। तो अब मैं फिर मतलब अपने आप को मैंने उस स्टेट में ट्रांसपोर्ट करके, और उस वक़्त मैंने देखा कि भाई ना रंग है मेरे पास ना कुछ है। तो मैंने कहा तो अगर मैंने एक्सप्रेस करना हो तो मैं कैसे करूँ। तो मैंने पानी का सहारा लिया उस वक़्त पे मैंने। तो पानी जब मैंने मतलब जो मेरी फीलिंग्स थी, तो मैं एक ऐसी जगह पे बैठ गया जहाँ लाइट आ रही थी, जो मैं पानी से स्ट्रोक लगा रहा था वो नज़र आती थी, उस पर लाइट पड़ रही थी। तो फिर मन में आया तो इसको रजिस्टर कैसे किया जाए। फिर देखा तो हमने शाही तो हमारे पास बहुत पुरानी है। तो फिर मैंने उस जहाँ जहाँ मतलब पानी ज़्यादा ही इकट्ठा हो गया था ब्रश से, तो जैसे ही मैंने उसमें इंक इंजेक्ट की तो ऐसे जो है इमेजेस आने शुरू हो गए। जो उसमें ये भी मतलब पोस्ट 1984 के बाद जो है सीरीज़ मैंने ये की थी, जिसके ऊपर मुझे जो है ये जिसका अभी जिक्र भी किया था कि जो ट्रिनाले इंटरनेशनल अवार्ड था वो 94 में मुझे इन्हीं ड्राइंग्स के ऊपर मिला था जो है। तो नेक्स्ट तो ये जो इमेजेस है मैंने मतलब उस, क्योंकि मैं उस वक्त अपने आप को इस प्लेनेट पे पहला आदमी मान रहा था, तो मेरे जो इमेजेस हैं मतलब वो भी कुछ ऐसे ही हैं जो सारे जो है। तो कि एनिमल्स तो हमारे ख़ास करके बुल और हॉर्स जो है ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं जो। तो ये सारे उसी मतलब उससे पेंट किए हुए हैं मैंने जो। नेक्स्ट हाँ, ये जो इसकी बात में ये इंक ड्राइंग्स की थी। ये जो वो जो हमने वाटर कलर देखे, आपने इंक एंड वाटर कलर जो देखे, ये बात के किए हुए काम है। तो ये जो ड्राइंग्स थी जो है मैंने कि भाई कैसे मतलब एक सन्नाटा सा छा गया था उस वक़्त जो है। तो उस सन्नाटे में जो आप दूसरा ये था कि मैं नया नक्शे इसलिए नहीं बनाना चाहता था किसी के, क्योंकि मैं कोई कम्युनिटी का मतलब कोई कॉज लेके नहीं चल रहा था। तो मैं सिर्फ मतलब जो मतलब उस वक़्त हुआ उसी पे एक तरह का हल्फनामा दायर कर रहा था अपना जो है। तो ये था मेरा उस वक़्त सोच है। तो ये जो है आप देखोगे इन ड्राइंग में, इसमें आपको कोई चेहरे नहीं मिलेंगे। बल्कि एक बार जब मैंने ये एग्ज़िबिट किया, पहले चंडीगढ़ में किया, चंडीगढ़ वालों ने मेरे पीछे CID लगा दी, फिर दिल्ली में किया, तो फिर कलकत्ता में किया। तो ऐसे आई वाज इनफैक्ट मेरे पीछे मतलब लोग सरकार के लगे हुए थे, ये क्या कर रहा है जो है। तो ये जो है ये जो सीरीज़ है ये जब कोविड से पहले जो है, एक तो है कोविड के बाद, ये कोविड से पहले मतलब फरवरी में दिल्ली में राइट्स हुए थे बहुत, तो आपको शायद याद होगा। तो जो राइट साइड पे आपके पेंटिंग है ये उस वक़्त की पेंटिंग है जो राइट्स की है। ये जो मतलब अब कोविड मतलब आ गया था तो कैसे माइग्रेंट्स की हालत हो गई थी, तो ये माइग्रेंट्स हैं एक तरह के जो। नेक्स्ट ये माइग्रेंट्स के हैं सारे। तो ये भी इधर माइग्रेंट्स है, उधर वो उसी सीरीज़ में से है, इमेजेस फ्रॉम द स्कार्ड सिटी के कैसे जो है जो मुल्क को चलाने वाले लोग हैं तो वो मतलब कैसे आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं और ना मतलब उनको कुछ सुनाई देता है और ना ही उनको कोई दिखाई देता है। तो ये सारे उसी सीरीज़ के काम हैं। तो ये है। So thank you very much sir for wonderful presentation, very inspiring journey। और मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाह रहा था कि ये जो आप लोगो देख रहे हो, दिस लोगो चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी लोगो, डिजाइन बाय 50 years बैक बाय श्री प्रेम सिंह सर।
तो आप देखो क्रिएशन एक बार हो जाती है फॉर लाइफ, अब वही लोगो चल रहा है ये। तो थैंक यू वेरी मच सर। एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि जो 22 तारीख को जब मैंने वो फंक्शन अटेंड किया था, मुझे ऑनर किया गया था, तो मुझे ये जो चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा मुझे क्योंकि अभी तक ये है कि जो एकेडमिशियंस होते थे वो जो है प्रोफेशनल्स को दूर रखते थे, जो प्रोफेशनल्स हैं वो एकेडमिशियंस को दूर रखते थे। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, दोनों में एक ब्रिज बना के उनको मिलाने का जो है। तो इसको मतलब मैं सोचता हूँ कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि मैंने एक और भी अभी कार्ड देखा है जो जलंधर में ये एग्जीबिशन कर रहे हैं जो, तो वहाँ भी मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ मिला के जो है, क्योंकि इनके एम्स एंड ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, आपके एकेडमिशियंस के डिफरेंट हैं, तो उसकी वजह से एक ऐसे मतलब जो है फजूल सी दीवार सी बनी हुई है। तो क्योंकि हमें मालूम भी था कि अगर हमारे कॉलेज में भी कोई प्रोफेशनल डिमॉन्स्ट्रेशंस के लिए आ जाता था तो हमारे कुछ टीचर्स जो है बड़े अनकंफर्टेबल फील करते थे कि ये हमारी टीचिंग में इंटरफेयर कर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जितना ये आपस में नज़दीक आएंगे, मैं सोचता हूँ उतना ही जो है मतलब आर्ट जो है उसका विकास भी होगा और विस्तार भी होगा। Moving forward, may I now request Shri Bhim Malhotra ji and Professor Ashima Bankar ji to kindly come on stage and present a token of respect to Shri Prem Singh ji. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Next, I invite Professor Ashima Bankar ji and Professor Nitin Mengi ji, Head of Department of Fine Arts, to kindly honor the following officials along with Vandana ma'am. Shri Ravinder Sharma ji, the Vice Chairman. Ms. Shilpi Arora, Office Administrator. Shri Subhash Chand ji, an official. Moving forward, we now come to the distribution of student awards. May I invite Shri Prem Singh ji, Shri Bhim Malhotra ji and Professor Nitin Mengi ji to kindly present the awards to our talented students. And Ashima Bankar ma'am. Saida Maria Farida and Amrinder Singh for installation in constant motion. Himani Badolia for the game design Satta. These are from Chandigarh University.
Last but not the least, Ayushi for sculpture. These are all students from Chandigarh University. Congratulations to all the winners on their remarkable achievements. This plate has been awarded to Professor Ashima Bankarji, Professor Nitin Mengi ji, and Srimati Vandana Dutt ji. सारे नाम दूंगा, एक ग्रुप फोटो। Next, I would like to invite everyone for the group photo. To conclude the formal proceedings, I invite Professor Nitin Kumar Mengi ji to deliver the vote of thanks. Thank you. Thank you everyone. आज यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। उसका रीज़न भी है, एक मेरा पर्सनल रीज़न भी है। मुझे जब हम स्टूडेंट्स थे तो रविंद्र शर्मा सर की एस्थेटिक्स की क्लास की मुझे पंक्तियाँ याद आती हैं कि कला एक साधना है, और वो बात सही है, क्योंकि उस साधना को जो साध गया वो प्रेम सिंह बन गया। एंड दूसरा, मुझे याद है जब DS कपूर साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे कॉलेज ऑफ आर्ट के, तो प्रेम सिंह सर का एक लेक्चर था और हम स्टूडेंट्स थे और हम स्केचिंग कर रहे थे। शायद हमें आने में लेट हो गया था तो हमें जगह नहीं मिली थी, तो मैंने वहाँ कॉर्नर पे वो खड़े होके सर का लेक्चर सुना था। और आज ये सौभाग्य है कि करीब 18 साल बाद मैं सामने वाली सीट के ऊपर बैठ के उनका लेक्चर सुन रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। डिस्कवर, लर्न, एम्पावर, ये मोटो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का। और आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ माई टीम फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन्होंने आज इस कला कनेक्ट को एक अलग स्केल पे खड़ा कर दिया है। सबसे पहले प्रेम सिंह सर, आपके जो मोती स्वरूप शब्द जो आज हमने सुने, हम सभी धन्य हुए। एंड जितने भी यहाँ बच्चे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी को अपनी ज़िंदगी की एक नई दिशा ज़रूर मिली होगी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द whole department of Chandigarh Lalit Kala Academy, starting from Shri Bhim Malhotra sir, Gurudev Shri Ravindra Sharma sir, my elder brother, मेरे आइडल गुरदीप धीमान सर बैठे हैं, प्रेसिडेंट पंजाब ललित कला अकेडमी, और सभी जितने भी गुरुजन हैं
जितने भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। हमारे सभी मीडिया कर्मी, जर्नलिस्ट जिन्होंने आर्ट कनेक्ट को घर घर तक पहुँचाया है, सर आप सभी का, मैम आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली माई टीम, faculty members starting from Director Professor Ashima Bankar, Executive Director Dr. Anurag Verma, Honorable Chancellor Satnam Singh Sandhu, Dr. Manpreet Singh Manna, Honorable Vice Chancellor of Chandigarh University, and भीम सर, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ और ये आपसे वादा करता हूँ, आर्ट को लेके आपके मन में जब भी कोई भी ख्याल आए तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके साथ खड़ी होगी। Thank you so much, dear faculty members. Thank you so much, dear students, and thank you so much UT administration, जिन्होंने हमारा इस आर्ट कनेक्ट में बहुत साथ दिया है। और हम बहुत जल्द इस साल एक और इवेंट लाने वाले हैं, तो उसमें उम्मीद रहेगी कि चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी दोबारा से हमारे साथ उसका सहभागी रहेगी। थैंक यू सो मच। Thank you for the speech, sir. Before we close, now may I please invite everyone for the photograph.